Hello everyone. So we are back again with our yet new series जिसमें हम आपके साथ बहुत सारे assertion and reason questions share करेंगे. दो हमने already webinars किए हैं जिसमें हम 1 mark questions आपके साथ लेकर आए थे. But on popular demand and students की problems को समझते हुए हम समझते हैं कि assertion reason questions वाकई आपके लिए बहुत problematic होते हैं. So हमें लगा कि हमें इस पर एक series करना चाहिए. So for today, we are going to study the first chapter of class 10 science, which is chemical reactions and equations. Before we proceed, let me just ask you or request you to follow the 1 Mark Solution channel on YouTube, Instagram, and blog, and FB and Twitter, and all the social handles that the channel is maintaining. So to begin with, first question that we have is, मेरा introduction आपको पता है. So I will just go ahead with the first question. And the first question, because assertion reason है, आपको पता है इसके rules. हमारे पास 4 keywords होते हैं और 4 key sentences होते हैं जिसमें से हमें कोई एक choose करना होता है. So here I have an assertion statement as stannous chloride, which is SnCl2, is a powerful oxidizing agent which oxidizes mercuric chloride to mercury. So oxidizing agent, let me just recall and revise oxidation and reduction. Oxidation हम लोग समझते हैं gain of oxygen is oxidation and gain of hydrogen is reduction. So जो भी reduction करता है वो खुद एक oxidizing agent होता है और जो oxidation करता है वो खुद एक reducing agent होता है. So उसका reason वो हमें समझाता है that stannous chloride gives gray precipitate with mercuric chloride, but stannic chloride does not do so. So basically जो वो stannous chloride की बात कर रहा है वो उसको एक conversion के फॉर्म में बात कर रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो stannous है वो stannic में convert हो रहा है. So आपको क्या लगता है कि assertion और reason में से इसमें से क्या correct है? Basically if you actually see, stannous chloride is definitely a very very powerful oxidizing agent. बट वो ग्रे प्रेसिपिटेट मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ इसलिए देता है क्योंकि वो उसे ऑक्सीडाइज करता है. उसमें स्टैनिक क्लोराइड करता है या नहीं करता का कोई ऑप्शन नहीं है और कोई उसको एक्सप्लेनेशन वो प्रॉपर नहीं दे पा रहा है. सो बेसिकली असर्शन इज डेफिनेटली ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू. सो वी विल मार्क द ऑप्शन एज सी. लेट्स गो अहेड. Corrosion of iron is commonly known as rusting. एक बहुत popular और commonly used statement है. So हमें समझ आता है Fe reacts with O2 in the presence of water and it forms Fe2O3 जिसको हम rust बोलते हैं. So corrosion of iron से हमें rust मिलता है and this process is definitely known as rusting. Now the reason for it says is corrosion of iron occurs in presence of water and air. So what do you think? Is it true or not? मैंने अभी आपको equation में बताया है that Fe plus O2 plus H2O gives you Fe2O3, which clearly tells me that assertion भी true है, reason भी true है और reason definitely assertion को explain properly नहीं कर सकता है क्योंकि water and air हमें चाहिए तो होता है but जो कोरोजन है वो रस्टिंग का एक लेवल अबव है. सो रस्टिंग के लिए, जब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो रस्टिंग के लिए वाटर एंड एयर का होना जरूरी है तभी आपको वो ब्राउन लेयर बनती है. बट कोरोजन का मतलब होता है टू गो अहेड एंड यू नो आपका मेटल जो है स्टार्ट डिकम्पोजिंग, वो खत्म होने लग जाता है. जैसे अगर आपके घर में कोई पुराना लोहे का दरवाजा हो तो आप देखेंगे पहले वो रस्ट होता है और रस्ट यानी जंग लगता है और जंग लगने के कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो टूटना शुरू हो जाता है, वो खोखला होने लग जाता है. सो वो प्रोसेस थोड़ा और एक स्टेप लेवल है, बियॉन्ड है, जिसमें वाटर एंड एयर तो कर ही रहा है काम बट डेफिनेटली देयर आर एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेजेंट जो ऑफ कोर्स उस पूरे प्रोसेस को कैटलाइज करती हैं, इनिशिएट करवाती हैं और उसकी स्पीड को बढ़ाती हैं. Another assertion that we have is in a reaction Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus copper. So here you can see कि एक displacement reaction हो रही है. Zinc is displacing the copper from copper sulfate and ultimately forming zinc sulfate plus copper. Statement कहता है zinc is a reductant, but it itself get oxidized. And उसका reason ये होता है that in a redox reaction, oxidant is reduced by accepting electrons and reductant is oxidized by losing electrons. This is what he is telling you. Okay, let us see अब zinc कर क्या रहा है. जिंक ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है जिससे वो बनता है जिंक सल्फेट. सो इफ यू एक्चुअली लुक एट द स्क्रीन एंड लुक एट द रिएक्शन, ये जो जिंक सल्फेट है यहाँ पे Zn2+ की फॉर्म में, यानी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया और वो Zn2+ बना.
सो क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से ये प्रोसेस क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है, एंड अल्टीमेटली वी कैन कॉल इट अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड यस दैट्स व्हाई रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सो आपको समझ आ गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा या रिडक्टेंट होगा। सो ऑफ कोर्स वही चीज यहाँ पर हो रही है। सो जिंक इज डेफिनेटली अ रिडक्टेंट बिकॉज इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, okay, yeah, itself getting oxidized. So both the words or both the statements are correct. So we know that assertion is also true, reason is also true, and reason is explaining the assertion so well. तो हम इसका A answer mark करेंगे. Next statement that we have is a reducing agent is a substance which can either accept electron. तो फिर से कॉल बैक करते हैं हम, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको याद करने के लिए जब मैंने ये सेशन आपके साथ लिया था 1 मार्क्स में, तभी भी मैंने आपको बताया था कि लियो डज गेयर हम यूज करते हैं, या ऑयल इन रिग वर्ड हम यूज करते हैं। सो व्हेनेवर देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी से इट्स ऑक्सीडेशन, एंड व्हेनेवर देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कॉल इट रिडक्शन. So anything which is undergoing oxidation is a reducing agent. हमेशा याद रखिए, oxidation, reduction, reducing agent, oxidizing agent. So that's how the things go on. Okay. So reducing agent is a substance which can either accept electron. So oxidation का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो ऑक्सीडेशन करेगा वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो वो लॉस करेगा, वो गेन तो नहीं कर सकता. Now reason वो कह रहा है a substance which helps in oxidation is known as reducing agent. So yes, ये नीचे वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, यानी रीजन हमारा करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. सो रीजन आपका ट्रू है, बट असर्शन आपका रॉन्ग है. A reducing agent is a substance which should lose electrons and not accept. So that's why there is a problem in the assertion statement and not in the reason. इसीलिए इसका आंसर D करेक्ट होगा. Let's go to another statement. The balancing of chemical equations is based on law of conservation of mass. ये एक स्टेटमेंट हमारे पास है जहां पर हमें पता है कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है और सारे जो मासेस होते हैं वो आपके उसमें बराबर होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव H2 plus O2 गिविंग मी H2O, सो लेफ्ट हैंड साइड का जो मास है वो राइट हैंड साइड के मास से बराबर होना चाहिए. ठीक है, दैट्स हाउ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज. Now the reason is total mass of reactants is equal to total mass of product. So reactant side पे जितना भी mass है, product side पे उतना ही mass होना चाहिए. So I'm sure अब आपको ये statement समझ आते हैं. Definitely, assertion is also true, reason is also true, and both are correct explanations of each other. Of each other भी कह सकते हैं. Assertion का correct explanation reason है और reason का correct explanation assertion है. कभी-कभी से आपको ये statements ना इनवर्स होके भी मिल सकती है, रिवर्स होके भी मिल सकती है. अभी हम लोगों ने कितने सारे प्री बोर्ड पेपर्स बनाए बच्चों के लिए, और आप लोगों ने भी बहुत सारे प्री बोर्ड पेपर्स आंसर किए होंगे. तो टीचर्स ऐसा ही खेल खेलते हैं ना, वो क्वेश्चन को इधर से ना पकड़ के कान को उधर से पकड़ने वाली बात है वैसे कर देता है. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको रीजन मैं यहाँ पर जो दे रही हूँ, आपके टीचर उसको असर्शन बना दे और असर्शन को रीजन बना दे. तो आपको लॉजिक समझ में आना जरूरी है, इसीलिए हम ये असर्शन और रीजन की वेब सीरीज कर रहे हैं. Let's go ahead and see the next question. Carbon dioxide turns lime water milky. ये एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है जो हम 3-4 चैप्टर्स में पढ़ते आए हैं. इस कंटेंट में हमने ये चीज नॉन मेटल्स में भी पढ़ी है, यहाँ ये चीज हमने एसिड बेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ी है, ये चीज हमने कार्बन वाले में भी पढ़ी है. सो यहाँ पर भी वही चीज आ रही है. सो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, राइट? सो कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट हैपेंस, लाइम वाटर इज कैल्शियम OH whole twice, so CaOH whole twice को हम लाइम वाटर बोलते हैं. और जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ काम करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी वजह से वो मिल्कीनेस आ जाती है ना. कार्बन डाइऑक्साइड सुलीज द वाटर, मतलब वो वाटर के जो प्रेजेंस होती है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करता है, उसके इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करता है. तो कहीं ना कहीं वो चीज एक बहुत प्रॉपर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पानी का यहाँ पे जिक्र ही नहीं है. जस्ट बिकॉज वी आर राइटिंग लाइम वाटर डजंट मीन दैट वाटर इज एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम. लाइम वाटर इज जस्ट a common name that we are using for calcium hydroxide, which is basically a slaked lime. So हम उसको सिर्फ वाटर की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, and ultimately this is what is happening. So seventh statement that we have is a chemical reaction becomes faster at higher temperatures. Okay, so ये तो हम समझते हैं कि reactions पे temperature का impact होता है ना.
नॉर्मली भी ऑल्सो जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं या हम कुछ कुकिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ चीजें होती हैं जो हम कुकिंग टेम्परेचर के साथ यूज करते हैं, हीटिंग प्रोसेस उसमें यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं? आलू को उबालना है तो टेम्परेचर हाई करने की कोशिश करेंगे ताकि वो जल्दी हो जाए, है ना। एंड उसका रीजन है एट हायर टेम्परेचर्स मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड। अब ये वर्ड शायद आपके लिए न्यू होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको वो चीज अच्छे से समझ आए। सो बेसिकली मॉलिक्यूलर मोशन का जो मतलब होता है वो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। जब भी हम हीट देते हैं, जैसे आप सोचिए प्रेशर कुकर है, वो सीटी देता है, तो वो क्यों देता है? क्योंकि आपने उसके अंदर जो पानी भरा, आपने उसके अंदर जो सोल्यूशन भरा, उसके अंदर इंटेंसिफाई हुआ प्रोसेस एंड अल्टीमेटली गैस बनी। वो जो गैस बन रही है वो क्यों बन रही है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक मोशन हो रहा है, उसके बीच उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक प्रोसेस हो रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है। सो उसको हम मॉलिक्यूलर मोशन के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। नाउ इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि क्या होता है जब हम हाई टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, बहुत इंटेंसिटी के साथ कोलिजन्स होते हैं। इसको हम कोलिशनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर आप में से कुछ बच्चे 11th-12th में साइंस लेंगे तो आप इसको और डिटेल में समझेंगे। सो बेसिकली जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके बीच में बहुत फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उनके बीच में एक बहुत अच्छी रिएक्शन होती है, इंटेंसिफाई वो करता है। सो अल्टीमेटली रिएक्शन फास्टर हो जाता है। सो assertion and reason both are true and reason is a correct explanation of assertion as well. Now, the next statement that we have is sodium metal is stored under kerosene and metallic sodium melts when exposed to air. So सोडियम मेटल ऑफ कोर्स बहुत बहुत रिएक्टिव होता है। वो इतना रिएक्टिव होता है कि नॉर्मली भी जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं तो हम सोडियम को सिर्फ एक गेहूं के दाने जितना लेते हैं। अगर आप उससे ज्यादा उसको लेते हैं, प्रोबेबली शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड में आपके टीचर्स ने भी आपको ये बात बताई होगी, तो वो इतना रिएक्टिव होता है कि इट कैन कैच फायर। सो उसको बचाने के लिए we usually keep it under kerosene. उसको एक केरोसिन कंटेनर में डिप करके रखा जाता है। तो जब हमें उसको काम भी करना होता है तो हम उसे निकालते हैं, फिल्टर पेपर से उसको वाइप करते हैं, सारा केरोसिन ऑयल उसका हटाते हैं और उसके बाद ही उसको प्रोसेस करते हैं। तो सोडियम जो है वो इतना रिएक्टिव होता है कि वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रिएक्ट कर जाएगा, पर रिएक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो मेल्ट कर जाएगा। सो सोडियम मेटल डेफिनेटली स्टोर्ड अंडर केरोसिन, दैट्स ट्रू, बट मेटालिक सोडियम मेटल्स जो हैं वो एक्सपोज अगर होते हैं तो वो मेल्ट नहीं करते, वो रिएक्ट विग्रसली करते हैं, बट वो मेल्ट डेफिनेटली नहीं करते। Next statement that we have is to dilute sulfuric acid, acid is added to water and not water to acid. तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है? हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है लैब्स वगैरह में, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। ऐसी सिचुएशन में हमें उसमें पानी डालना पड़ता है। तो जब हम पानी डालते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं ना, या तो आप पानी का कंटेनर ले लीजिए और उसमें एसिड डाल दीजिए, या आप एसिड ले लीजिए और उसके अंदर पानी डाल दीजिए। सो नॉर्मली हम जो है एसिड को पानी के अंदर डालते हैं क्योंकि रिएक्शन होने का डर रहता है। अगर आप पानी डाल देंगे ना एसिड में तो वो एकदम से स्प्लैश होगा और प्रोबेबली आपका फेस, आपकी हैंड्स और मतलब आपको तकलीफ हो सकती है, आप जल सकते हैं। तो वो प्रोसेस के बेसिस पर हम एसिड को पानी में धीरे 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 डालते हैं। ये प्रोसेस बहुत आराम से करना होता है वरना रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होती है। एंड उसका रीजन वो ये बता रहा है दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज। सो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मतलब उसकी इंटेंसिटी, उसकी रिएक्शन होने की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। सो assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion as well. Let's go to the next statement and we have calcium carbonate when heated gives calcium oxide and water, and reason uska ye hai that on heating calcium carbonate decomposition reaction takes place. So let me recall this reaction for you. So calcium carbonate CaCO3 जब आप उसको thermal decomposition होता है उसका, so you get CaO calcium oxide plus carbon dioxide. So assertion है calcium carbonate heated when gives you calcium oxide and water. So I don't think that's correct, right? We get calcium oxide and कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन डेफिनेटली होता है। सो असर्शन हमारा फॉल्स है क्योंकि हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जबकि रीजन हमारा ट्रू है कि वो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। Next question that we have is brown fumes are produced when lead nitrate is heated. So PbNO3 whole twice को जब आप burn करते हैं या heat करते हैं तो आपको brown fumes मिलते हैं because of nitrate present there.
नाउ रीजन वो ये कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. सो डेफिनेटली लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, और नाइट्रेट जो मैं बता रही हूँ कि लेड नाइट्रेट ब्रेकअप होता है लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, सो वो नाइट्रेट बनता है बेसिकली, एंड नाइट्रेट NO3 माइनस वो फर्दर डिसोसिएट होके NO2 रिलीज करता है, और ये NO2 ही आपका बाय प्रोडक्ट है. मेजर प्रोडक्ट तो आपका लेड ऑक्साइड बनता है. सो that is what the reason is, and of course both assertion as well as reason is correct. Let us go to next statement, which is white silver chloride turns gray in sunlight. So silver chloride again undergoes photolytic decomposition. If you remember, हमने 3 टाइप के decomposition reactions पढ़े थे क्लास 10th में, मतलब अभी के आपके सिलेबस में, एंड उसमें से एक था photolytic decomposition by light. So silver chloride जो है वो decompose करता है and it turns gray. And now the reason is decomposition of silver chloride in presence of sunlight takes place to form silver metal and chlorine gas. So of course silver chloride जब decompose करता है तो वो silver metal form करता है, और वो silver metal जो है वो आपको mirror का presence देती है. So that's why assertion is also correct, reason is also correct, and reason is definitely defining the assertion properly. Next statement that we have is pungent smelling gas is produced when sulfur burns in air. So sulfur जब बर्न करता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल पंजेंट होती है. पंजेंट स्मेलिंग का मतलब है कि आपको इरिटेट करने वाली होती है, आपको उसको स्मेल करते हुए बहुत अच्छा फील नहीं होता है. आप हर किसी के लिए पंजेंट की डेफिनेशन अलग होती है. सबको पंजेंट की स्मेलिंग अलग लगती है. जैसे मुझे पेट्रोल की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, सो मेरे लिए इवन अ पेट्रोल स्मेल इज पंजेंट, क्योंकि आई डोंट लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है पेट्रोल की स्मेल से. सो हमारे सबका होता है. किसी किसी के घर में घर का घी बनता है, तो ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि उसके घर में जब वो घर का घी बनता है तो पूरी महक महक आ जाती है, और उसको बहुत वो गंदी और इरिटेटिंग स्मेल लगती है. तो सबकी डेफिनेशन पंजेंट की अलग होती है, बट ये जो सल्फर और एयर की स्मेल है ये बहुत सफोकेटिंग सी होती है, मतलब आपको अच्छी नहीं लगती है, वेरी इनअप्रोप्रिएट और अनलाइकेबल स्मेल होती है. सो उसके लिए हम उसको पंजेंट बोलते हैं. एंड उसका रीजन वो कह रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन. सो सल्फर प्लस ऑक्सीजन S+O2 विल गिव यू SO2, और यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड बोल रहा है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड तो SO3 तो नहीं बनेगा. ठीक है, सो रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है. एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर वो बोल रहा है कि सल्फर बर्न करता है, स्मेल आती है. रीजन में वो स्मेल की भी कोई बात नहीं कर रहा और रिएक्शन की भी बात नहीं कर रहा, वो सीधा सिर्फ कुछ सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात कर रहा है जिसका असर्शन से कोई लेना देना नहीं है. इसलिए पहले 2 ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाते हैं. सो प्लीज कीप इन माइंड कि जब आप असर्शन और रीजन क्वेश्चन करते हैं तो इस तरह का आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है. आपकी असर्शन स्टेटमेंट और आपकी रीजन स्टेटमेंट में एक रिलेशनशिप आपको स्टैब्लिश करना है. That was all about. We came up with a very very small video, but definitely I'm sure आपको explanation समझ आई होगी और आपको थोड़ा सा comfortable feel हो रहा होगा with assertion and reason thing. You can watch this explanation again on this link which is given, and that's all. Thank you. And I'm sorry, I will share the